ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਇਆਲ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤੇਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਮੁਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨਾ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ, ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ।
ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ 552 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹਾ ਨਾਮਕ ਦੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਾਝ ਰਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਜੀਬ ਰਚਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਦੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, 12 ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਤਾਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲ ਹੋਰਾ। हे प्रभु, मेरे ते रहमत कर, मेरे ते किरपा कर। क्योंकि मैं 4 दिशावां दे विच भटकदियां ਇੱਥੇ पहुंचिया। 4 कुंट दह दिस भ्रमै, थक आए प्रभु की साम। साम कहते ने शर। 4 कुंट, 4 कोणे, पूरब, पश्चिम, उत्तर ते दक्षिण। 10 दिशावां भाव 4 दिशावां, 4 उपदिशावां ते धरती ते आकाश, ये 10 दिशावां हो गई। साहिब कहते ने भटकदियां भटकदियां अज मैं आप जी की शरण विच आया, पनाह विच आया। मैनू एक गल की अज खबर मिली है। किहड़ी गल? साहिब कहते ने जिवें कि धेन दुधे ते बाहरी
किते न आवे का। गऊ दुध ना देंदी होवे ਉਹਨੂੰ कौन रखेगा अपने घर। मझ दुध ना देंदी होवे ਉਹਨੂੰ कौन रखेगा अपने घर। किसी काम दी नहीं है। हो बहु इसी तरह जल बिन शाख कुमलावती उपजय नाही दाम। जे जल नहीं है, पानी नहीं है, फसल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो कोई मनुख चाहे कि मैनू उस फसल तो कुछ दाम हासिल होवे, साहब कहते ने नहीं हो सकता। क्योंकि जल नहीं है तो फसल कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि फसल का, खेती का आधार है जल, पानी। उसी तरह हर नाहा न मिली है साजन है कत पाई है विश्राम। जीवन विच नाथ नहीं है, मालिक नहीं है। हुण आप जी नूं मैं अर्ज करा, मनुख लभदा है शांति विश्राम, पर मूल नूं छड्ड के शांति लभदा है। मैं एक छोटी जी गाथा जी दे सामने रखा, गल समझ आ जाए। एक सम्राट बीमार होंदा है ते बहुत वैद बुलाए जाते हैं, पर गल समझ नहीं आती, पकड़ विच नहीं आती। तो किसी फकीर ने कह दिता कि ये रोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसने शाम तक ठीक हो जाना है। बस एक ऐसे मनुख का कोट चाहिए है जिहड़ा धनी होवे ते शांत होवे। ध्यान दे नाल सुनना, जिहड़ा धनी होवे ते शांत होवे, ਉਹਦਾ कोट जे किधरे मिल जाए तो इसनों पा दो, इन्हें ठीक हो जाने। हुण तलाश जारी हुई। लोग कहण लगे कोट तो साडे कोल है, धनवान तो असी हाँ, पर जिथों तक शांति की गल है वो साडे कोल नहीं है। कोट तो एक कीमती पै ने, पर शांति नहीं है। कहते ने सारा दिन बतीत हो गया, अद्धी रात जदों होई तो कहते ने कि जंगल विच बैठा होया एक मनुख जिहड़ा कि गीत गा रहा है आनंद दे विच। ते सम्राट दा नौकर सोचदा है ये जितने आनंद नाल गीत गा रहा है जरूर इहदे कोल शांति है, जरूर। ते इहदे कोल ही चलने आ, इन्हां तो ही कोट मंग के लैने आ। अंधकार सी, जदों उहदे कोल पहुंचे कहण लगे आप जी दा संगीत बहुत मधुर है, बहुत प्यारा है, जरूर आप जी दे जीवन विच शांति होवेगी, ते किरपा करो अपना कोट सानू दवो। वो जिहड़ा संगीतकार सी, संगीत पेश करदा पिया सी, वो कहंदा है कि हाँ जीवन विच शांति तां है, इहदे विच कोई शक नहीं है, पर जिथों तक कोट की गल है, आ देखो मेरे तन नूं, जदों तन नूं देखिया अलफ नगन बैठा हुए सी, तन ते कोई कपड़ा नहीं सी। कहने तो मुराद जिहदे कोल कोट है उहदे कोल शांति नहीं है, जिहदे कोल शांति है जरूरी नहीं उहदे कोल कोट भी होवे। कहने तो मुराद जीवन विच परम शांति चाहिदी है, तो धन गुरु अर्जन देव साहब कहंदे ने गुरु दा आसरा चाहिदा है, विश्राम चाहिदा है, गुरु दा पल्ला फड़ ले। जे गुरु दा पल्ला नहीं फड़िया तो साहिब कहंदे ने जित घर हर कंत ना प्रगटाई भट्ट नगर से ग्राम। जीवन विच प्रभु दे बोल नहीं हन, हिरदा तप रहा है, चेतना तप रही है, बिरती तप रही है। और जदों धरती तपदी होवे तो तपदी हुई धरती ते कदे बीज अंकुरित नहीं होंदा। धरती तप रही है, तप रही है। अक्सर किसान की करता है, तपदी हुई धरती नूं ठंडक देने लई पानी देंदा है। पहला जदों वो धरती ठंडक कबूल करती है, गहराई तक पानी नूं ले जाती है, फिर वो बीज बीजदा है, फिर बीजिया होया बीज अंकुरित होंदा है। ते गुस्ताखी माफ, जे हिरदा भी तप रहा होवे उत्थे नाम अंकुरित नहीं होवेगा। हिरदा तप रहा है क्रोध नाल, हिरदा तप रहा है अहंकार नाल,
ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਖਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਪਾਨ ਦੇ ਬੀੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੋਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। तो साहिब दे बोल ने, प्रभ स्वामी कंत विहोणियां मीत सजन सब जाम। देखदियां देखदियां वो मित्र भी दूर हो गए, देखदियां देखदियां वो सज्जन भी दूर हो गए। क्यों? क्योंकि जे एक नाल मित्रता कायम नहीं कीती ते समझ लेना बाकी दे मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं। जे एक सज्जन है सारे सज्जन हो गए, जे एक दे नाल प्रीत नहीं जोड़ी बाकी दे सज्जन भी वैरी हो गए। नानक की बेनंतियां कर कृपा दीजै नाम। इस पावन शब्द दे विच जो 12 माह दा ये प्रथम शब्द है, मैं अर्ज करा इस तरह 14 शब्द हैं 12 माह की बाणी विच। जिहड़ा प्रथम शब्द है वो भूमिका है, ते जो अखीरला शब्द है 14वां वो उपसंगार है। ते बाकी दे जिहड़े 12 शब्द ने हर एक महीने के मुताबिक विचार उपदेश। तो साहिब दे ये बोल ने, हे प्रभु मेरे ते रहमत कर, मेरे ते कृपा कर। की पई मंगदे ने? कहंदे ने नाम चाहिदा है जीवन दे विच नाम। बहुत दफा देखिया किश्ती है पर मला नहीं है, बीज है पर उस बीज नूं धरती नहीं मिली। बहुत कीमती साज हन पर साजां नूं वजाउण वाला साजनहार नहीं है। कहंदे ने साज भावें कितने भी कीमती होण पर साजनहार नहीं है, कोई कीमत नहीं साज दी। बहुत कीमती बीज है पर बीज नूं धरती नहीं मिली है। बीज ने अंकुरित नहीं होना क्योंकि धरती चाहिए उसनूं, धरती नहीं मिली। बहुत कीमती किश्ती है पर मला नहीं है, ते मला तो बगैर किश्ती अधूरी है। धरती तो बगैर बीज अधूरा है और साजनहार तो बगैर साज अधूरे ने, और गुस्ताखी माफ नाम तो बगैर जीवन अधूरा है। जीवन अधूरा, जे जीवन विच गुरु नहीं है जीवन अधूरा है, अधूरा। तो साहिब जी ये मंग पई करते ने, हे प्रभु नानक की बेनंतियां कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका नह चल धाम। जदों नाम दी दात पई मंगदे ने तां एक गल चेते रखना, इहदे विच जिक्र कीता है कृपा दा। क्योंकि कई दफा मनुख कह दिंदा है मैं इतना सिमरन कीता है हुण नाम दी खैर मेरी झोली विच पा। मैं इतना पाठ कीता है हुण हे प्रभु नाम दी दात मेरी झोली विच पा। कहंदे ने ये सब कुछ करके किते दावा ना कर बैठना कि नाम मैं जपिया, सिमरन मैं कीता है, सेवा मैं कीती है, इबादत मैं कीती है, पुण्य मैं कीता है, दान मैं कीता है। ये सब कुछ करके किते दावा ना कर बैठना। जे किधरे दावा कीता है
सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बेकार। नाल दी नाल गुरु साहब जी ये कह रहे ने, हे प्रभु दान होया है तेरी किरपा नाल, सिमरन होया है तेरी किरपा नाल, संगत कीती है तेरी किरपा नाल, बस इतनी किरपा कर मेरी झोली विच नाम दी खैर पा दे, नाम दी खैर। फिर संगत नसीब होंदी है ऐसे गुरमुखों दी जिसका नह चल धाम। दुनिया के तमाम धाम जिहड़े हन वो चलाएमान ने, अज मौजूद ने, कल का पता नहीं। तंदुरुस्ती अज है, कल का पता नहीं, उसका की माफ। इलाही रुतबा अज है, कल का पता नहीं। क्योंकि कई दफा मैं अर्ज करना कि कितना भी वड्डा रुतबा होवे, अखीर विच कहना पैंदा है ये भूतपूर्व मंत्री है, कहना पैंदा है। क्योंकि एक समा सी जदों मंत्री सी, हुण भूतपूर्व है। ये प्रेजिडेंट है पर हुण नहीं, हुण भूतपूर्व है। पर कदे ये नहीं सुनिया होवेगा कि ये भूतपूर्व संत है, ये नहीं सुनिया होवेगा। ये भूतपूर्व भगत है, ये नहीं सुनिया होवेगा। क्योंकि संत कल भी संत सी, अज भी संत है। दरवेश कल भी दरवेश सी, अज भी दरवेश है। दुनिया के तमाम रुतबे कल सी, अज नहीं है। इसनों साहब ने कह दिता कि जिसका मुकाम नैचल होवे, मैंने उन्हों दी संगत बख्श, उन्हों दी संगत। तो उन्हों दी संगत वास्ते सानू की करना पएगा। जो अज दा दिहाड़ा, जो नानक शाही मुताबिक प्रथम महीना चेत, मैं आप जी नूं अर्ज करा, जदों असीं कह देने अज नवां साल नवां दिन, पर गुस्ताखी माफ, एक गल चेते रखना, सब तो पहला साल ते सब तो पहला दिन ते सब तो पहली घड़ी किहड़ी सी? किसनूं खबर है कि अज कुदरत बनी है, अज पहला दिन है? किसनूं पता सी? गुरु नानक साहिब ने अपनी इलाही अजीम रचना विच कह दिता कि थिथे वार न जोगी जाने, उरत महा ना कोए, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। वो खुद ही जानता है पहला दिन केड़ा सी, नवां साल केड़ा है, पहली घड़ी केड़ी है, वो खुद ही जानता है, खुद ही। क्योंकि कई दफा जिसनों असीं कह देने हाँ, थोड़ी जी गल मैं होर स्पष्ट कर देवां, जदों बच्चे का जन्म होया ते असीं कह देने अज जन्म होया, ते उसे दिन तो उसनों आधार बना के असीं उहदा जन्मदिन मनाते हैं कि अज जन्म होया। पर ये असीं भुल गए हाँ कि जन्म अज नहीं होया, जन्म तो 9 महीना पहला हो गया सी मात गर्भ दे विच, जीव तो आ गया सी। पर वो जीव कद आया सी मात गर्भ दे विच, किसी नूं भी पता नहीं, किसी नूं भी पता नहीं। अजो की साइंस भावें शिखर ते वो भी इस गल नूं नहीं पकड़ पाई कि मात गर्भ दे विच हरकत कद आंदी है, आत्मा कद आंदी है, चेतना कद आंदी है, पकड़ विच नहीं आएगा। पर हाँ इतनी गल जरूर है कि पहली खबर परमात्मा दे कोल, दूजी खबर मां दे कोल। इसे करके कहते हैं कि मां खुदा दे करीब है, मां परमात्मा दे करीब है। जे परमात्मा दा सरगुण रूप देखना होवे तो मां नूं देख लेना। मां परमात्मा दा दूजा रूप है, सरगुण रूप है। तो पहला खबर प्रभु दे कोल है, जीव कद आया, दूजी खबर मां दे कोल है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जे ईसवी सन नूं मुख रख लईए तो प्रथम महीना जनवरी, जे विक्रमी संमत नूं मुख रखीए तो प्रथम महीना चेत। तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने ते गुरु नानक साहब ने भी चेत नूं साल दा प्रथम महीना मनिया है। आप जी दे इलाही बोल चे गोबिंद आराधी, चेत दा महीना है तो उसनों चेते कर,
उसनों याद कर, उसकी आराधना कर तू, की कुछ प्राप्त होवेगा। क्योंकि कई दफा मनुख कह देंदा है मैं उसनों गावांगा, पर प्राप्त की होवेगा, मिलेगा की। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते ने होवे आनंद घना, आनंद। क्योंकि मनुख की जिहड़ी तलब है, जिहड़ी तड़फन है कि जीवन विच आनंद चाहिए, आनंद। क्योंकि कई दफा की होंदा है, मात गर्भ दे विच बालक नूं कदे रोंदे होए नहीं सुनिया होएगा। मात गर्भ दे विच बालक नूं शांत रूप विच वेख्या होवेगा, क्योंकि उहदे कोल आनंद की अवस्था है, उहदे कोल शांति की अवस्था है। थोड़ा जिहा गहराई नाल इसनूं समझना। फिर बालक का जन्म होया। जदों बालक का जन्म होया, बच्चे ने रोना शुरू किया। हुण साइंस कहती है बच्चा क्यों रोया, उहदा अपना ख्याल है साइंस का। धार्मिक पुरुषों का अपना ख्याल है बच्चा क्यों रोया। कहते ने कुछ वैद जदों कट्ठे होके भाई गुरदास दे कोल जांदे ने और कहते ने भाई साहब जी एक गल दसो, बालक क्यों रोंदा है जदों उहदा जन्म आंदा है। तो भाई साहब दे बोल सी कि वह बच्चा इस करके रोया क्योंकि मात गर्भ दे विच उहदे कोल जो एक सहज दी अवस्था सी, जो परम शांति सी, वो उदों खुस गई है, खत्म हो गई है। वो परम शांति, वो आनंद जो मात गर्भ विच सी, जन्म होने दे नाल वो खत्म हो गई, वो समाधि खत्म हो गई। बच्चा इस करके रो रहा है। हुण रोंदे हुए बच्चे की शुरुआत हुई है जीवन की। तो कई दफा मैं अर्ज करना, रोंदे हुए बच्चे ने जन्म लिया, फिर स्कूल जा रहा है, गुस्ताखी माफ, रोंदा होया जा रहा। तालीम जदों उहदी पूरी हुई है, फिर कारोबार वास्ते फिर रोंदा है, कारोबार चाहिए है, कारोबार चाहिए। घर गृहस्थी वास्ते फिर रोंदा है। और कहते ने गाहां जदों बच्चियां दे बच्चे हो जाते हैं, तो जदों उन्हां दा रोना ये सुनता है, फिर यह कहता है कि हुण मैं जाके थोड़ी देर संगत विच बैठा, मैनू परम शांति मिले। फिर जदों वो कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, तो कीर्तन सुनदियां, कथा सुनदियां, फिर वो नेत्र सजल हो जाते हैं, फिर वो रोंदा है। कथा सुनदियां, कीर्तन सुनदियां। हुण क्यों रोया है? पहला रोया सी तालीम वास्ते, पहला रोया सी कारोबार वास्ते, पहला रोया सी बच्चियां वास्ते, लेकिन संगत विच बैठ के कथा कीर्तन सुनदियां जो रो रहा है, वो इस करके रो रहा है कि हुण उसनूं परम समाधि दी झलक मिलनी शुरू हो रही है, आनंद शुरू होया जीवन विच। वही अवस्था जो मात गर्भ विच सी, हुण इसनूं फिर नसीब हो रही है। इस करके नेत्र सजल हो गए, कीर्तन सुनदियां नेत्र सजल हो गए, कथा सुनदियां। तो साहिब कहते ने होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई है, रसना नाम बना। तू बैठ गुरमुखां दे कोल, तू बैठ संतां दे कोल, जिन्हां ने जीवन अपना बना लिया। उन्हों दे कोल बैठ के तू भी बोल, तू भी बोल। की बोलिए? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। क्योंकि मां अक्सर अपने बच्चे नूं बिठांदी है और मां कुछ बोल बोलदी है, बालक सुनदा है। पिता कुछ बोलदा है, बालक सुनदा है। ते फिर वो बालक की करदा है? मां नूं देख के खुद भी बोलदा है ते बोलना सिखदा है। पिता नूं देख के बालक भी बोलदा है, बोलना सिखदा है। ते जे किधरे मां बोले ही ना, तो बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, नहीं सीखेगा। बच्चे नूं बोलना सिखाना होवे, मां बोलदी है, पिता बोलदा है, तो साहिब कहते ने तू संगत विच बैठ, तू गुरु दे बोल सुन, ते बोल सुन के फिर तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल। ये बहुत जरूरी है बोलना। बोलने तो भाव सिमरन कर, जप उस प्रभु जिन पाया प्रभु आपना,
आए तिसे गणा। जिन्होंने साधना करके और उस प्रभु दे नाल मिलन कर लिया, कहते ने ओ कबूल हो गए, ओ गिणती विच ने। नहीं तो कितने ही बीज धरती ते पै ने, पर कोई कोई बीज दरख्त बनता है, बाकी बीज नष्ट हो जाते हैं। कितने ही बीज ने, कोई कोई बीज दरख्त बनिया, फल भी आए, फुल भी आए। और उसी तरह गुस्ताखी माफ मनुख तो बहुत सारे ने, पर कोई कोई समाधि दे विच पहुंचता है, कोई कोई मंजिले मकसूद ते पहुंचता है, बाकी तो आए ते गए, आए ते। कहते ने उन्हों की गिनती कितनी है, कहते ने बेशुमार। उन्हों का आउना ना आउना इको वर्गा है, इको वर्गा। कई दफा मैं अर्ज करना, एक बीज नाल पूरी धरती ते पौधे उगाए जा सकते हैं, एक बीज नाल। क्योंकि एक बीज नूं बीजिया, फिर उस तो बहुत सारे बीज होए, फिर वो सारे बीज बीजे गए, फिर उन्हों तो अनंत बीज पैदा हुए। तो एक बीज तो अनंत अनंत बीज पैदा किए जा सकते हैं, एक बीज तो। पर शर्त है कि उस बीज नूं धरती की तपस मिलनी चाहिए, तपस। हूबहू उसे तरह जे मनुख की चेतना नूं ध्यान की गर्मी प्राप्त हो जाए, सिमरन की तपस प्राप्त हो जाए चेतना नूं, तो कहते ने ओही चेतना परम अवस्था तक पहुंच जाती। हो वे आनंद घना नाम जपदियां जपदियां जपदियां। ते ओही मनुख गिणती विच है जो मंजिले मकसूद ते पहुंच गया। अगां चल के साहब कहते ने, एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जन। एक खिन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई साहब भाई नंदलाल नूं कहंदे ने, भाई साहब जी एक गल दस, ये जो आसमान है ये इस तरह काला क्यों है, कारण की है? भाई साहब जी कहने लगे, महाराज करते की मित करता जाने। आकाश काला क्यों है ये तो करता ही जानता जिसने बनाया है। भाई साहब जी तुसी भी दसो, क्योंकि तुसी कवि हो, शायराना अंदाज विच तुसी भी कुछ कहो। तो ध्यान देना, भाई साहब जी की कहते ने, जो दिन और रात धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल रहिंदे ने, फिर भी की कहते ने, कहते ने हे प्रभु, जदों एक पल एक खिन भी तेरे नालों विछोड़ा हो जाता है, एक पल, वो पल जो तेरी याद तो बगैर बतीत होया, बस उस पल दे विचों जदों अंदरों होके निकले ने, बस वो होके ही आसमान तक पहुंचे ने। उन्हां होकियां करके आकाश काला हो गया है, उन्हां होकियां तड़फन करके, तड़फन करके। इतनी तड़फन? हाँ महाराज, इतनी तड़फन। क्योंकि एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। मेरा जीवन बिरथा हो गया। भावे मैं बहुत बड़ा रुतबा हासिल कर लिया, भावे मैं बहुत कुछ सुख हासिल कर ले, पर तेरे तो बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जल थल महियल पूरिया रविया विच वना। जो प्रभु जल विच भी बैठा है, थलते भी बैठा है, महियल विच बैठा होया है, और जर्रे जर्रे विच मौजूद है, जर्रे जर्रे विच मौजूद। हुण ओ प्रभु जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, ते गुस्ताखी माफ, कई दफा एक सवाल उत्पन्न होता है कि रब कित्थे बैठा होया है। कुछ लोग सवाल पूछ लेंदे ने, रब कित्थे बैठा होया है। जदों एक बालक नूं सवाल किया मौलवी ने, खुदा कित्थे है, बालक कहता है, मौलवी जी सवाल गलत है, गलत है। मौलवी कहता है सवाल गलत किस तरह है, मैं यही पूछिया है खुदा कित्थे है। वो बालक कहता है, मौलवी जी सवाल इस तरह पूछ, खुदा कित्थे नहीं है, ये सवाल पूछ। ये सवाल पूछना बेअर्थ है कि खुदा कित्थे है, क्योंकि जर्रे जर्रे विच बैठा हुआ था, जर्रे जर्रे विच।
ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਆਈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਧਰਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? क्योंकि हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था। मैं गुरु ने एक गल पूछी है तो गुरु ने दसिया कि भगती तो बगैर जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो ऐसा प्रभु जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गणा। दुख, क्योंकि जो तन की खुराक है भोजन, जे तन की खुराक ना हासिल होवे, देखदियां देखदियां तन कमजोर हो जाता है। क्योंकि तन नूं खुराक चाहिए सी, नहीं मिली। कितने ही रोग पैदा हो गए, कितने ही रोग। तन कमजोर हो गया क्योंकि तन नूं भोजन नहीं मिलिया। तो जिस तरह तन की खुराक भोजन, उसी तरह चेतना की खुराक भजन। जे जीवन विच भजन नहीं है, चेतना कमजोर हो गई। जे भोजन नहीं है, शरीर कमजोर हो गया। फिर जीवन दे विच दुख ही दुख ने, दुख ही दुख ने। मूल कारण की है? दुख क्यों आए? क्योंकि मनुख दे जीवन विच परमात्मा नदारद हो गया, नदारद हो गया। जीवन विच परमात्मा दा नदारद होना, कहते ने फिर मनुख के कर्म विगड़ जाते हैं। और कर्म बीज है, कहते ने मनुख नूं समझ लेना चाहिए है कि मेरी झोली दे विच जे दुख रूपी फल पिया है तो गुस्ताखी माफ जरूर माड़ा कर्म किया होगा, जरूर। जीवन दे विच जे सुख रूपी फल पै गए ने, जरूर गुरु साहब ने रहमत की है। कोई चंगा बीज, कोई चंगा कर्म मेरे तो आप करवा लिया, उस करके ये फल मेरी झोली विच पिया है। तो कर्म बीज है। जे बीज बीज बैठे हाँ, फल भोगना पेगा। बीज बीज चुके हाँ, फल खाना पेगा। कई दफा की आंदा है, जदों वो फल साडी झोली विच आउंदा है तो मनुख की कहंदा है, ये बीज तो मैं बीजिया ही नहीं सी, मैं तो रोज चंगे कर्म करना, रोज चंगे कर्म करना, ये माड़ा फल कित्थों आ गया? फिर मनुख दोष दिंदा है दूजे नूं, तीजे नूं, चौथे पंजवे नूं। दुख आए पुत्र करके, गुस्ताखी माफ। दुख आए ने पति करके, पत्नी करके, जीवन विच दुख आए ने पड़ोसी करके, जीवन विच दुख आए ने मित्रां करके। पर मनुख ये भुल जाता है कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दी जाए अवरजन। मैं कीता सी। इस रोहे जमीन ते बहुत थोड़े ने ऐसे जिहड़े कहंदे ने हाँ मैं कीता सी, मैं पा लिया, पा लिया। ऐसे लोग फिर साधना करते ने, फिर एक एक बीज जदों बीजते ने, कर्म जदों करते ने, बड़े होश विच करते ने कि किते ऐसा बीज ना बीजिया जाए जिहदे करके फिर कौड़ा फल साडी झोली विच पवे, फिर कौड़ा फल। तो साहिब कहते ने सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गणा, जिनी राविया सो प्रभु
तेना भाग मना राविया जिसने गा लिया। कहते ने सभागे हन जो प्रभु की प्यास लैके संगत विच बैठे ने, सभागे ने। कहते ने ओदी प्यास लैके बैठना, ओदी प्यास विच बैठना, ओदी तड़फन विच बैठना, कहते ने मुबारक है उन्हां दा जीवन। कई दफा ऐसा भी होता है कि सारा जीवन बतीत हो जाता है पर प्यास नहीं लगती, प्रभु की नहीं लगती। तो प्यास किस तरह लगे? कहते ने रूहे जमीन ते जिहड़े तमाम धार्मिक स्थान ने, उत्थे मनुख नूं रूह दा भोजन मिलता है, रूह की खुराक मिलती है। तू रोज गुरु घर विच बैठ, कीर्तन सुन, कथा सुन, इत्थे तेनों प्यास लगेगी, इत्थे तेनों भुख लगेगी। रोज रोज कीर्तन सुनदियां, रोज रोज कथा सुनदियां प्यास लगनी शुरू हो जाती है, प्यास। और कहते ने कि जिस मनुख के जीवन विच प्यास होवे, ऐसे मनुख नूं परमात्मा दे नाल मिलन विच कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत। पर जे किधरे प्यास ही ना होवे, फिर कहने लगे फिर दुनिया की कोई ताकत उसनूं मिला नहीं सकती, क्योंकि प्यास ही नहीं है। एक दो गल्लां मैं आप जी दे सामने रखा। सर्वप्रथम प्यास चाहिए है, प्रभु की प्यास। जदों मनुख प्यास लैके बैठा होंदा है गुरु घर दे विच, ते कदी कदाई ऐसा भी होंदा है कि प्यास तां बहुत है पर आस नहीं होंदी। अंदरों आवाज आउंदी है, खबर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पर नहीं, जिथे प्यास है उत्थे आस भी रख, आस भी रख। क्योंकि मनुख की जिहड़ी सोच शक्ति है, कई दफा ऐसे लोगों को मनुख देख लेंदा है जो पूर्ण तौर पर नास्तिक हो गए, पूर्ण तौर पर टुट गए ने, तो मनुख कहता है इन्हों नहीं मिलिया मैनू कित्थों मिलेगा, इन्हों नहीं हासिल होया मैनू कित्थों हासिल होएगा। पर नहीं, तू भगत कबीर नूं देख, तू भगत रविदास नूं देख, तू मीराबाई नूं देख, तू शेख फरीद नूं देख कि जदों भगत कबीर नूं मिलिया तैनूं भी मिलेगा, तैनूं भी मिलेगा। शेख फरीद नूं मिलिया तैनूं भी मिलेगा, भगत रविदास नूं मिलिया तैनूं भी मिलेगा। तो जीवन इस तरह आशावादी होना चाहिए है, जिथे प्यास होवे उत्थे आस भी होवे। तीजी गल मैं होर कह देवां, जिस तरह का जीवन असी रोज जी रहे हाँ, रोज कहते ने इस जीवन दे विच तब्दीली चाहिए है। इस तरह कि जिस तरह का जीवन जी रहे हाँ असी, जो कुछ कल किया अज भी वही करांगे, जो अज करांगे आउण वाले कल विच भी वही करांगे। जीवन साडा इस तरह बन गया, जो कल किया सी वो अज करांगे, जो अज करांगे वही कल करांगे। कहते ने नहीं, जीवन दे विच तब्दीली चाहिए है। किस तरह? कहते ने तेरे शरीर दे विच जिहड़ी ऊर्जा है वो कई दफा बोल बोल के असी ऊर्जा खत्म कर देंदे हैं, बोल बोल के। शेख शादी साहब जी कहते सी, तू बोल थोड़ा ही बोल, थोड़ा ही बोल, पर ऐसे बोल बोल के तेरे बोलों में खुशबू होवे, मेरा मिट्टी का ढेर ही ना कढ़ी जा, मिट्टी का ढेर। थोड़ा बोल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशबू ਹੋਵੇ। कहते ने मनुख बोल बोल के अपनी ऊर्जा मुका देंदा है, खत्म कर देंदा है। जेड़ा मनुख थोड़ा बोलता है ਉਹਦੀ ऊर्जा बचती है, और बची हुई ऊर्जा दे नाल फिर तू सिमरन कर, फिर तू पाठ कर, फिर उस पाठ का ते उस सिमरन का आनंद ही कुछ होर होंदा है। चौथी गल आप जी दे मैं सामने रखा, संकल्प। क्योंकि मनुख का जिहड़ा मन है, जे एक हिस्से दे नाल संकल्प करता है तो मन दे 9 हिस्से विकल्प खड़ा कर देंदे ने सामने। जिवें आप जी ने संकल्प किया मैं कल गुरुद्वारे जाना है, संकल्प किया,
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਬਾਕੀ 9 ਹਿੱਸੇ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਵਿਕਲਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਲਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਲਪ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ। जितनी देर बैठ, मन करके बैठ, प्रेम करके बैठ, जितनी देर भी बैठ। तो साहब कहते ने जिनी राविया सो प्रभु, जिन्हों ने उस प्रभु नू गा लिया, तिना भाग मना, उन्होंने भाग मना तो बहुत मुराद बहुत चंगे भाग, बहुत चंगे। कदी कदाई मनुख नू अपने जीवन दे विच ओदा ही हिस्सा मिलता है। भाग तो मुराद हिस्सा, मेरे भाग जितने सी मिल गया, मेरे हिस्से विच जितना सी मैनू मिल गया। जिहड़ा मनुख प्रभु की इबादत करता है, वो प्रभु की दौलत का हिस्सेदार बन जाता है। भाग उहदे फिर चंगे हो जाते हैं, क्योंकि जो ठाकुर का सो सेवक का। पुत्र बहुत चंगे कर्म करता है, ते पिता फिर की करता है, अपना हिस्सा भी उस पुत्र नूं दे देंदा है जिहड़ा पुत्र आग्याकारी। वो कहता मेरा हिस्सा भी तू साम। कारण की है, तू पिता दा अदब कीता, तू पिता दी सेवा कीती, पिता ने अपना हिस्सा भी तेनों दे दिता है। जदों असीं गुरु दे बोल ते पहरा देने आ, अमल करदे आ, कहंदे ने फिर गुरु दा हिस्सा वो भी साडा ही हिस्सा बन जाता है, साडे भाग विशाल हो जाते। तो साहिब कहते ने जिने राविया सो प्रभु, तिना भाग मना, हर दर्शन काओ मन लोचदा, नानक प्यास मना। प्रभु दे दर्शना लई मन तड़फ रहा है, मन लोच रहा है, मन लोच रहा। जेकर असी जीवन नूं देखीए तो मनुख नूं उदों रोंदे देखिया जदों धन चला गया। मनुख नूं उदों रोंदे देखिया जदों किसी अजीज मित्र दा विछोड़ा हो गया। मनुख नूं उदों रोंदे देखिया जदों उहदे हथ चों कुछ निकल गया, रोंदे देखिया। पर गुस्ताखी माफ, बहुत थोड़े ऐसे ने जिन्हां नूं इस करके रोंदे देखिया कि अज नितनेम नहीं होया, इस करके रोंदे देखिया। अज गुरुद्वारे नहीं गए, इस करके रोंदे देखिया। अज सिमरन नहीं होया, इस करके रोंदे देखिया। साहब कहंदे ने इन्हां दा रोना रोना नहीं है, इन्हां दा एक एक हंझू कहंदे ने अंदर नाम रूपी बीज नूं अंकुरित करके चला गया। एक एक हंझू, एक एक हंझू। और कहंदे ने जदों एक नौजवान पुरुष ने जदों देखिया सामने, ते उसनों पुछ बैठे ये कौन है। ये जिस तरह बैठा होया है अखां बंद करके, ये कौन है, की करदा पिया है। तो उस नौजवान नूं जवाब मिलिया, ये साधक पुरुष है, ये सिद्ध पुरुष है, जो सच की तलाश विच बैठा होया है। ध्यान देना, जदों इस नौजवान के कन्नां विच ये बोल पे कि ये सच की तलाश विच बैठा होया है, कहंदे ने उस नौजवान का हिरदा रो पिया।
ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਤੜਫਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੜਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕਹਿ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਕੌਣ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਦੀ ਖਬਰ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹਨ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ, 11 ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਔਰ 4 ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੀਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕਹਿ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ